वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज अहोय। तो आज एक मिक्स्ड शॉर्ट रिव्यू, few comic books and two movies. So two comic books and two movies. Although there is another detailed review for this. So this is Absolute Wonder Woman, which I loved. पहले मैंने शेयर किया था कि ये मुझे अच्छी लगी रही है, तो ये पढ़ के ही मैंने ली थी। बट मैंने इसमें पढ़ी तो और भी ज़्यादा मज़ा आया। सो इसमें है 7 इश्यूज। सो ये 1 to 7 ऑफ एब्सोल्यूट वंडर वुमन का रन है, और इसमें 1 to 5 एक स्टोरी है विच इज़ रिटन बाय हेडन शर्मन, और देन देर इज़ अ 2 issues बाय who are sorry, that's the artist Hayden Sherman. All the stories are written by Kelly Thompson, or 1 to 5 is drawn by Hayden Sherman, and जो लास्ट की 2 stories हैं they are drawn by Matty Adair Lewis. I might be not pronouncing the name right, but these are the this is the team. But the main point is it's really essential for anyone who loves Wonder Woman. और एक री इमेजिन करा गया है, बट री इमेजिन इतना ज़्यादा क्रेजी नहीं है। तो आपने जो इन्जॉय किया होगा वंडर वुमन की स्टोरीज़ को थ्रू द ईयर्स, स्पेशली ग्रैंट मॉरिसन, और जो रिसेंट रन आया था एजरेलो का, विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन DC कॉम्पैक्ट, कॉल्ड वंडर वुमन ब्लड एंड गट्स। तो उसमें थोड़ा नहीं काफ़ी सारा उसमें चेंज किया गया था, बिकॉज वंडर वुमन का एक मिथिकल कैरेक्टर से लाइक फॉर्म्ड ऑफ क्ले एंड ऑल दैट, उसको पूरी ओरिजिन चेंज करी गई थी। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्लड एंड क्ले. So I'll review it probably sometime later, but इसमें you will see like a very classic Wonder Woman. इसमें there is a good amount of focus in her relationship with her mother. There is Steve Trevor. There is a couple of DC characters appearing, but very minor ones. और इसमें आपको ग्रीक माइथोलॉजी के ही क्लासिक कैरेक्टर्स दिखेंगे, जैसे मेड्यूसा, बेसिलिस्क, एंड देर इज़ हर स्वॉर्ड इज़ कॉल्ड एथीना। एंड इसमें इट्स लाइक अ सेल्फ कंटेन्ड स्टोरी, एंड यू विल रियली लव इट, बिकॉज इसमें हर एक चीज़ का एक एक्सप्लेनेशन है। एवरीथिंग इज़ देयर फॉर अ रीज़न, एंड इट्स रियली एन्जॉयबल। लाइक इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, इट्स अ गुड बैलेंस बिटवीन आर्ट एंड डायलॉग एंड एक्शन। तो मुझे काफ़ी वेल बैलेंस लगी। आई वुडंट से इट्स अ परफेक्ट वंडर वुमन स्टोरी, but it's a good 8 on 10. So this is Absolute Wonder Woman, and again awesome art and awesome variant covers at the end. So coming to the second comics of the day, this is called You Have Been Cancelled. So this is a comic on this indie publisher called Mad Cave. So I have a couple of comics on Mad Cave, and these are mature ratings, so I can't show you all the pages, but mainly story है जैसे cancel culture की, and if there is a अभी एक मूवी आई है द रनिंग मैन, विच इज़ लाइक अ रीबूट ऑफ एन 80s का साइंस फिक्शन फिलिप के डिक आई थिंक डिस्टोपियन स्टोरी। तो इसमें थीम वही है कि फ्यूचर में देर इज़ दिस होल कैंसिल कल्चर, एंड गेम शोज होते हैं विच पीपल पे फॉर। तो लाइक कैमरे पे समवन गेट्स कैंसल्ड, तो काफ़ी ब्रूटल तरीके से होता है। और किस तरह इसमें जो एक सेंट्रल कैरेक्टर है जो एक हीरो टाइप का होता है, ड्यू टू सम ग्लिच इन द सिस्टम he is the one who will now get cancelled. So these are some variant covers, but overall it's like a very not like a great book as such, but if you love like science fiction, dystopia, those kind of themes like Philip K. Dick, Isaac Asimov, Blade Runner, you will enjoy it. और इसमें काफ़ी अच्छी आर्ट है, और इसमें मुझे recently I've been reading such books and I was not getting like much satisfaction, because they used to like go in some weird directions, but this was a quite an enjoyable book. इसमें कोई भी ऐसी कोई overpowering theme या वो सब नहीं है, nonsense, but it's really a classic enjoyable book. The Running Man. No, You've Been Cancelled. So please check out You've Been Cancelled if you can. Coming to the film reviews, the first one is Jurassic World Rebirth. So again, I was very skeptical about it, और मुझे लग नहीं रहा था कि I will like it, but I actually
was surprised by it because reviews काफ़ी mixed थे और भी टीवी पे आई तो ये फिल्म देखी. और this is also made by Gareth Edwards and it's mainly set after few years after the first trilogy. So Jurassic Park 3 के I think after 17 years or so उसके बाद में this is set और ये एक stand alone फिल्म है. It's not related to the Jurassic World books. Jurassic World movies. तो आई थिंक उनको भी पता है कि काफ़ी सारा मैसअप कर दिया था विद डोमिनियन एंड विद दिस वन दे हैव अ फ्रेश कास्ट. तो इसमें कुछ क्रिस प्रैट एंड ऑल दोज पीपल आर नॉट देयर ऑल्दो आई लाइक क्रिस प्रैट बट इसमें मेनली वही सब है. दे गो टू अनदर आइलैंड एंड देर इज़ अ रिच काइंड ऑफ industrialist or like corporate guy. He wants like serum from these mega dinosaurs. So these are like a little genetically modified dinosaur and he wants that serum to cure like diseases or something. So Scarlett Johansson plays a mercenary and along with her Mahershala Ali, some like this band of characters go to this island to get this serum फ्रॉम द थ्री. मतलब जितना बड़ा डायनासोर होगा उतना अच्छा होगा. एंड दिस इज़ द स्टोरी. और इसमें एक पैरेलल स्टोरी चलती है एक मैक्सिकन आई थिंक एक स्पेनिश फैमिली की. तो it's not a Jurassic Park movie unless someone does. You have characters who do really dumb things. So that doing the dumb thing part is done by this family. और ये पैरेलल में स्टोरी चलती है और इसमें देर इज़ ऑब्वियसली लॉट ऑफ पोर्शंस दैट लैग बट मुझे इसमें क्या अच्छा लगा 4-5 सीक्वेंसेस आर रियली वर्थ योर मनी. तो एक है सी पे बेस्ड सीक्वेंस जिसमें लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग लाइक शिप कोलाइडिंग विद डायनासोर्स एंड they are trying to get that serum from like a floating dinosaur. I'm sorry I can't name all of them like Mosasaurus, Titanosaurus. I can't pronounce this. Spinosaurus is really cool one. Yeah, so Spinosaurus is the one that features in that sequence on over water. तो वो बहुत अच्छा sequence है. बाकी एक classic sequence है which recalls like the first Jurassic Park, like in that kind of farm. You have those big dinosaurs and then end sequences काफ़ी अच्छा है. इसमें एक balance of like horror and action and that wow factor is there. So many people liked it. Those who have grown up watching Steven Spielberg का original trilogy. तो उस way में I think this was good. It was not great. Probably I don't know, they should not make any more of these for some time now. पर जितना भी था इट वॉज गुड. तो इंजन कॉम्प्लेक्स है उसी आइलैंड में अबैंडन. वहाँ पे दिस स्टोरी टेक्स प्लेस और ओवरऑल इट वॉज अ डिसेंट एन्जॉयबल मूवी. आई हैड लिटिल टू नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस बट आई एंडेड अप एन्जॉइंग इट अ लॉट. सो दिस इज जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ एंड in terms of rating I would say it's like a 7 on 10 for me and probably 0.5 to not suck. So this is Jurassic World Rebirth. Coming to another film, Loka Chapter 1 Chandra. तो ये एक फिल्म थी जो काफ़ी acclaimed थी recently and this is directed by Dominic Arun and produced by Dulquer Salmaan and cast stars Kalyani Priyadarshan and this actor who was there in Premalu called Neslin. तो इसमें एक plot है. There is a supernatural element and there is a modern element. तो modern element is based in like a alternate version of Bangalore जिसमें like there is neon lights and kind of a science fiction vibe to it. And इसमें जो एस्टैब्लिशिंग पॉइंट है वो लाइक 1/3 ऑफ द स्टोरी इज ऑल दैट लाइक जो कॉमन एलिमेंट्स अभी देखने को मिलते हैं. देर इज़ अ गर्ल लिविंग इन द नेबरहुड एंड जस्ट लाइक वो उसी टाइप का एलिमेंट्स है. फ्लर्टिंग एंड क्रश एंड ऑल दैट. तो देर इज़ अ कैरेक्टर ऑफ चंद्रा एंड शी इज़ वर्किंग नाइट शिफ्ट एंड she visits this holy grail cafe and then there is this hero and his like loser sidekick kind of friends and they try to woo her. और एक करप्ट कॉप है और बस ये सब चलता रहता है. बट जो मेन एलिमेंट आता है उसका दिस होल वैम्पायर थीम वो समवेयर अराउंड मिड पॉइंट आता है जब पता लगता है शी इज़ अ यक्षी.
और इसमें केरला की फोकलोर्स को एक्सप्लोर किया गया है। तो कलियन कट्टू नीली एक लेजेंड दिखाई गई है एक फ्लैशबैक स्टोरी में, और इसी तरह दिखाया गया है कि किस तरह मतलब ओरिजिन स्टोरी है उसकी, और प्रेजेंट वर्ल्ड में हाउ शी हैज़ टू फाइट these other kind of supernatural elements. So few parts were interesting. After this Yakshi and the vampire story comes starts happening, तो इसमें magic के elements है, supernatural है, और जिस तरह vampire की stories में होता है कि if someone takes a bite then he imbibes the character, और vampire में एक super power like superhuman strength होती है। एंड फिर इसमें टिपिकल थोड़ी पॉलिटिकल थीम्स दिखाई गई हैं, लाइक obviously the like they try to show these characters like vampires and this central character of Neeli as like someone very cool, और गवर्नमेंट तो लूज़र होती है। तो गवर्नमेंट की जो गरुड़ा फोर्स है उनको बिल्कुल बेवकूफ़ जैसा दिखाया है कि ओहो टेररिस्ट के पीछे पड़ गए। और फिर लास्ट में लाइक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का स्टोरीज, ओ लेट्स सी हमारे सुपरस्टार्स आने वाले हैं अभी ना, तो उनका बिल्डअप देखो अभी, जस्ट एंडलेस थिंग। एंड जो मूवी का मेन क्रक्स आता है जब आपको लगता है कि जो भी ये कैरेक्टर थी स्लीपी टाइप की, नाउ शी विल फुली ट्रांसफॉर्म इनटू अ वैम्पायर, तो कुछ अच्छा पे ऑफ मिलेगा, वो उसमें देखने को नहीं मिलता। एंड इसमें फालतू का बिल्डअप है। देयर इज़ लाइक टू सुपरस्टार्स ऑफ मलयालम सिनेमा, टोविनो थॉमस हु also starred in Minnal Murli, another like overrated superhero film, and Dulquer Salman, I think he just wanted to appear to set up like part 2, so he appears in the end, never ending. So I was really annoyed with that. Then again, like the religious element, so I am not someone who will like talk about it overtly, but if a film has इतना ज़्यादा फिल्म में अगर जो राइटिंग स्टोरी जो फिल्म की मेकिंग है उसमें इफ़ यू आर ट्राइंग टू शो दैट मैनी डिवाइसिव एलिमेंट्स देन आई हैव टू टॉक अबाउट इट। तो इस वही एलिमेंट है कि ऑल द विलेंस आर लाइक हिंदूज, और दे आर लाइक एमोरल, बैकवर्ड, स्लीजी, और सारे जो बाकी कैरेक्टर्स हैं दे आर लाइक कूल सेवियर्स, दे लाइक वेयर लेदर जैकेट्स, दे डू जोक्स, तो वही सब है। और जो इसमें मेन कैरेक्टर कल्याणी प्रियदर्शन का, शी इज़ समवन हु हैज़ लाइक लिमिटेड एक्सप्रेशन, सो शी इज़ जस्ट लाइक वॉकिंग अराउंड स्लीपी एवरीवेयर and she's supposed to be hot or something, I don't know, and there's like too much emphasis on style and glamour, और बैंगलोर का पता नहीं क्या विजन है, एंड व्हाट इज़ द ऑब्सेशन ऑफ मलयालम फिल्म्स विद बैंगलोर, बिकॉज हर एक दूसरी फिल्म में वही है कि वो बैंगलोर में देखो ये होता है, एंड आई डोंट नो वेयर इन बैंगलोर डू आई सी स्ट्रीट्स लाइक दैट, बिकॉज आवेशम, फिर एक मूवी आई थी आई थिंक रोमांचम, इसमें सब में वो बैंगलोर टाइप की ही वाइब आती है। सो आई थिंक इट्स देयर लाइक बैंगलोर फैंटेसी और समथिंग। ऑब्वियसली बैंगलोर डेज वाज देयर विच वाज लाइक मोर रियलिस्टिक देन दीज फिल्म्स। फिर वही यूजुअल बैचलर टाइप के एलिमेंट्स, बैचलर, हॉस्टल, क्रश, लाइक सिटकॉम टाइप का कॉमेडी विच नॉट फॉर मी। वो प्रेमलू में भी वही सब हो रहा था। फिर दिस कैरेक्टर वॉज सो डम, स्पेशली दिस पोर्ट्रेयल ऑफ दिस एक्टर रिमाइंडेड मी ऑफ रीरी विलियम्स, द आयरन हार्ट थिंग। मतलब कुछ जस्टिफिकेशन ही नहीं है, सडनली शी गेट्स दिस पावर, तो इट डज नॉट लुक कन्विंसिंग। इसको पूरा एक स्टाइल दिया गया है दिस कैरेक्टर को, लाइक दे गिवन अ कॉन्वर्स शूज एंड लाइक दिस जैकेट एंड यू नो लाइक शेडी वाइब, शी इज लाइक दिस कूल कैरेक्टर। बस यही है, बाकी जो भी बचा था दे हैव कॉपीड फ्रॉम सम मार्वल कैरेक्टर्स लाइक गैम्बिट और सो, लाइक एक कोई प्लेइंग कार्ड ऐसे फेंकता है एंड ऑल दैट। फिर थोड़ा सा स्लो मोशन डाल दिया है विच लाइक एक्सटेंड्स द टाइम ऑफ द मूवी बाय अनदर 10-15 मिनट्स। सो रियली ओवररेटेड फिल्म। आई वुड हैव लाइक्ड इट अगर even if you leave those all those politics aside and your divisiveness aside and you know your agenda aside to whatever show few people as dumb and all that, अगर आप सुपर हीरो वाले एलिमेंट अच्छे करते तो आई वुड हैव फॉरवर्डेड द अदर पार्ट्स एंड यू नो वॉच दैट वैम्पायर वाला एलिमेंट या सुपर नेचुरल वाला एलिमेंट थोड़ा ढंग से, बट इवन दैट वॉज लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो मेन कैरेक्टर है हीरोइन का, शी वॉज लाइक सो बोरिंग, डज नॉट लुक कन्विंसिंग इन एनी ऑफ द सिचुएशंस, लाइक नॉर्मल मॉडर्न वर्ल्ड में भी या तो वो सुपर हीरो की फाइट्स में भी। तो आई डोंट नो वाई why people like this, but maybe I'm too old, but that's how I feel, so I just wanted to share Loka chapter 1.